फीचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टीनिया कोलाई। और क्या होता है थर्ड? सैकुलेशन और हॉस्टेशन। दीज आर द थ्री cardinal feature. As you all know that rectum and anal canal, please be quiet. This rectum and anal canal, these are the part of large intestine, but these two parts are divided of these three cardinal features. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होने के बावजूद इसमें वो जो तीन कार्डिनल फीचर्स आपको रेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन और इसमें मिलेगा, दैट वाज डेफिशिएंट इन रेक्टम एज वेल एज इन एनल कैनाल. The literal meaning of rectum is straight, but it is a misnomer, as in human beings it is not a straight tube, it is straight in quadruped. ठीक है, rectum का मतलब तो होता है straight, but ये human being में misnomer है क्योंकि यहाँ पे ये straight नहीं है, it is curved. There are lots of curvatures present in the rectum and it is straight in, किसमें straight है? Quadruped. Quadruped में straight होता है and it has got few curvatures which are present anteroposteriorly and there are few curvatures which are present on the lateral side. So in human it is not a straight tube but as naam hai, but it is a misnomer. Rectum is a lower dilated part of large intestine which is present in the, कहाँ present है rectum? Lesser pelvis में है ना? It is present in the lesser pelvis in front of lower three press of sacrum, that is S3, S4 और S5 और coccyx के in front present है in the lesser pelvis, behind the bladder in male and behind the uterus in female. क्योंकि in female in between the bladder and the rectum there is presence of uterus, है ना? bladder और rectum के बीच में uterus present है और इसके आगे मेल में आपका bladder present है, whereas in female uterus is present and in between the two there are presence of pouches. So it is a lower dilated part of large intestine which is present in lesser pelvis between the sigmoid colon and the anus. ठीक है, तो sigmoid colon और जो आपका रेक्टम है उसकी जंक्शन को रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, ठीक है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन टिल द एनल, रेक्टो एनल जंक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेक्टो एनल जंक्शन. वहां से सिग्मोइड कोलोन से एनल के इन दोनों के बीच में है. और आपको पहले ही बता दिया कि रेक्टम और एनल कैनाल दोनों में ही ऑल द थ्री कार्डिनल फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्सेंट, दैट इज टीनिया कोलाई, एपेंडिसिस एपिप्लॉइका एज वेल एज सैकुलेशन, ऑल दीज आर एब्सेंट और मेसेंटर भी नहीं है. So this is the position of rectum. This is the rectum which starts from, this is the continuation of किसका? sigmoid colon का continuation है और it is present in the lesser pelvis in front of lower three piece of sacrum and coccyx. And in front in male, this is the section of male pelvis. So in front of the rectum there is presence of urinary bladder and in between the two there is a pouch known as rectovesical pouch. Whereas in female, in between the two, there is presence of uterus. ठीक है, तो the pouch, there are two pouches in between urinary bladder और uterus के बीच में और uterus और rectum के बीच में. ठीक है, तो ये वाला जो pouch इसके rectum के आगे होगा वो recto-uterine pouch होगा in female. ठीक है, तो it began as a continuation of sigmoid colon opposite किस लेवल पे? S3 के लेवल पे है क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है? S3, S4, S5 और कॉक्सिस के आगे है. तो रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ S3 वर्टिब्री. और एंड कहाँ पे होगा? एनोरेक्टल जंक्शन पे. एनोरेक्टल जंक्शन कहाँ पे लाई करता है? इट विल लाई जो टिप ऑफ कॉक्सिस है उसके 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड अ लिटिल बिलो. ठीक है, एनोरेक्टल जंक्शन जो टिप ऑफ कॉक्सिस है वहां पे है. ठीक है, उसके 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड अ लिटिल बिलो there lies the anorectal junction. So this is the lower limit of rectum. और rectum में कहते हैं कि जो apex of prostate है वो भी इसी लेवल पे होता है in male. The measurement of rectum की जो length है that is around 12 centimeters. Whereas diameter की बात किया जाए तो diameter is different in the upper part of rectum as well as lower part of the rectum because the lower part of the rectum has a dilatation known as rectal ampulla. क्या कहते हैं उसको? Rectal ampulla. लोअर पार्ट में थोड़ा dilated है, उसको rectal ampulla कहते हैं.
तो सिग्मॉइड कोलोन का जो डायमीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। तो अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम इज, तुम्हें खड़े होकर के एक लेक्चर अटेंड करना है क्या? क्या हो गया? बोलो, जा। हेलो, या गुड मॉर्निंग, या जी जी सर बोलिए। हाँ हाँ समझ गई। Right now actually I am taking the lecture in my present medical college. Can I call you after 1 so that I can talk to your principal? Can I call on this number? Yeah, I'll call you after 1. Okay. So the length of the rectum is 12 centimeter. Its diameter in the upper half is 4 centimeter. That is same as sigmoid colon. Whereas the lower half it is dilated and that part is known as, बार-बार नहीं बोलूंगी मैं, I'll throw you out. समझ में नहीं आ रहा है एक बार में बात मेरी? तुम कर क्या रहे हो? ना कोई कॉपी ना किताब, बस बैठ कर अटेंडेंस बनानी है। कॉपी किताब नहीं निकालते कोई बात नहीं, पढ़ो मत पढ़ो, चुप तो बैठो, वो भी डिसिप्लिन नहीं है। सब कुछ आता है, एग्जाम में पता चलेगा, 2 महीने ही बचा हुआ है ना? तुम्हारे असल फेसेस उसी दिन देखने के लिए मिलते हैं। When the rectum is empty, तो क्या होता है कि जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम है और जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम है दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, अप्रोक्सीमेट रहते हैं। ठीक है, दीज आर अप्रोक्सीमेटेड। तो अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इट विल अपीयर एज अ ट्रांसवर्स स्लिट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन, if you take the cross section of rectum it will appear as a transverse slit. Now I am telling कि straight नहीं है, इसमें कुछ curvatures है। तो there are 2 type of curvature, one is known as antero-posterior curvature and one is known as lateral curvatures. तो antero-posterior curvature are 2 in number। ठीक है, 2 होते हैं antero-posterior curvature। The upper one is known as sacral curvature, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसके पीछे क्या है, आपका जो sacrum और coccyx है। तो एक तो curvature, the upper one is known as sacral curvature which is due to the curvature of sacrum and coccyx। जो sacrum और coccyx की concavity है उसमें fit होती है, तो that's why that curvature is known as sacral curvature which is the upper one, antero-posterior present है, and the another one which is present anteriorly that is known as perineal। क्या कहते हैं इसको? perineal curvature। आपने pelvic diaphragm पढ़ लिया है ना? पेल्विक डायफ्राम में किससे बनाया? लिवेटर एनाई मसल से बनाया। तो लिवेटर एनाई मसल एक स्लिंग पास करती है जो कि जाके एंटीरियरली किसमें अटैच होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन में अटैच होता है, और जिसकी वजह से बेंडिंग होती है कहाँ पे? एनोरेक्टल जंक्शन पे। एनस और रेक्टर का जो जंक्शन है, क्या देख रहे हो मोबाइल? एनोरेक्टल जंक्शन पे, क्योंकि वो जो मसल है वो ऐसे स्लिंग बना करके उसको आगे पुल करती है और गेट अटैच ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो द सेकंड कर्वेचर दैट इज कॉल्ड द पेरिनियल कर्वेचर, दिस इज ड्यू टू दिस स्लिंग। ठीक है, प्यूबोरेक्टाइलिस स्लिंग ऑफ लिवेटर एनाई व्हिच इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम, उसकी वजह से। तो दीज आर द 2 कर्वेचर, वन इज नोन एज सैक्रल एंड वन इज नोन एज पेरिनियल कर्वेचर, एंड दीज आर एंटेरो-पोस्टीरियर, आगे पीछे है। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। तो द अपर वन, उसकी जो अपर वन है क्योंकि कंकेविटी ऑफ सैक्रम कैसी है? ऐसे है, कंकेव है। तो जो पीछे वाला कर्वेचर है सैक्रल कर्वेचर, वो इज कन्वेक्स, और जो पेरिनियल है जो आगे की तरफ उसको खींच कर है दैट इज अ कनकेव स्पॉट। दीस आर द 2 एंटेरो-पोस्टीरियर कर्वेचर। एंड नाउ द 3 लेटरल कर्वेचर। लेटरल कर्वेचर मैंने बताया, एक तो एंटीरियर हो गया, एंटेरो-पोस्टीरियर कर्वेचर हो गया, दैट आर 2 इन नंबर। नाउ लेटरली भी वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व्ड है। तो these are 3 in number, upper, middle and lower। जो upper और middle वाला है that is present convex on the right side। ठीक है, upper और lower both are present on the right side। there is जो middle वाला curvature है, convexity है, वो कहाँ है? middle। ठीक है, जो upper वाला है वो किस जंक्शन पे है? S3 और S4 का जो जंक्शन है वहां पे है।
जो मिडल विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, दैट कन्वेक्सिटी इज प्रेजेंट एट द सैक्रम कोस्टिजियस जंक्शन। उठ जाओ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या पानी का बॉटल? तो हंस क्यों रही हो ना? यू आर लाफिंग। स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ। जो लास्ट में वहां पे जाके पानी भी पियो और वहां खड़ी रहना लास्ट बेंच पे। गो। और डोंट शो मी एटीट्यूड, गेट लॉस्ट फ्रॉम द क्लास। अगर इतना एटीट्यूड दिखाना है ना, बाहर जाओ, मेरे को मत एटीट्यूड दिखाओ। पूरा साल तुम्हारे एटीट्यूड ही देख रहे हैं टोटली। ठीक है, तो देयर आर एवरीवन कीप क्वाइट। मैं पढ़ा ना पाऊं कोई बात नहीं, बट आज मैं बदतमीजी नहीं होने दूंगी। यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तुम बहुत ज्यादा, तुम्हें पानी पिलाने का शौक है। उठो, खड़े हो। आई सेड गेट अप। मैं तो तुम्हें ही को देखा आवाज। उधर जाके खड़े हो। तो खड़े हो वहीं, पानी पिलाते रहना। ठीक है, तो देयर आर 3 curvatures in which the upper and the lower are present on the right side, whereas middle is present on the left side. The upper one which is present, तुम्हारी बारी है, बता दे रही हूँ। तो लेट आते हो डीएच में, फिर रिक्वेस्ट भी करते हो, फिर यहाँ तक के भी शुरू हो जाते हो। The upper one which the upper right one is at the level of S3S4 junction. The middle जो लेफ्ट साइड में है वो सैक्रोकॉक्सियल जंक्शन पे है, और जो सबसे लोअर राइट साइड में है वो टिप ऑफ कॉक्सिक्स के लेवल पे है। तो दीज आर द 3 curvatures. लेटरल कर्वेचर क्या है? क्या है? क्या इधर से उधर कर रहे हो तुम दोनों? स्टैंड अप। Now the relations. First we'll talk about the peritoneal relations of rectum. As अगर जैसे अभी बताया मैंने 3 curvature, अगर rectum को 3 पार्ट में divided, the upper, the middle and the lower third. So the upper third of the rectum is surrounded by the peritoneum fold, both anteriorly and the side. जो posterior part है, whole of the rectum is non-peritoneal. ठीक है, rectum को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो posterior वाला जो पोर्शन है वो कहीं पे भी peritoneum से कवर नहीं है। ठीक है, जो एंटीरियर और साइड है, अपर 1/3 का, दैट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। जो मिडल थर्ड है, दैट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ओनली इन द मिडल पार्ट। ठीक है, वेयर एज लोअर पार्ट इज टोटली नॉन पेरिटोनियल। ठीक है, तो अपर 1/3 में कहाँ हुआ? आगे और साइड में, पीछे नहीं। मिडल 1/3 में इट इज प्रेजेंट ओनली एंटीरियरली, नाइदर इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड नॉट टोटली। Whereas in the lower third of the peritoneum, it is totally non-peritoneal. So this is the general overview. तो आगे में मेल में कौन सी पेरिटोनियम होगी? जो रेक्टम और ये यूरिनरी ब्लैडर के रेक्टोवेसाइकल फेशिया है ना, और फीमेल में रेक्टोयूट्राइन फेशिया। तो उसकी पेरिटोनियल कवरिंग अपर थर्ड में और मिडल थर्ड में एंटीरियर, साइड में ओनली इन द अपर थर्ड एंड पोस्टीरियरली होल इट इज नॉन पेरिटोनियल। So that's why it is so the posterior part is non-peritoneal, anteriorly it is covered, ठीक है, और साइड में सिर्फ अपर 1/3 पार्ट में, ना मिडल में ना लोअर। और रिफ्लेक्शन मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट हो गया। अभी बता दिया, रेक्टोवेसाइकल पाउच आएगा और फीमेल में रेक्टोयूट्राइन पाउच आएगा। तो इट वाज डिफरेंट ऑन ईदर साइड। और साइड में सिर्फ अपर 1/3 ही पार्ट होगा, दैट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। ठीक है, और इस पाउच में क्या क्या कंटेंट होते हैं? ऑल दीज पाउच कंटेन दी कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज सिग्मोइड कोलन। ठीक है, तो दिस इज द कंटेंट ऑफ दैट पाउच, दैट इज रेक्टोवेसाइकल और द रेक्टोयूट्राइन पाउच। अब जनरल अगर रिलेशन देखोगे तो एंटीरियरली द रिलेशन इज डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि डिफरेंट पाउचेस है। तो इन मेल एंटीरियरली इट इज रिलेटेड विद द बेस ऑफ द ब्लैडर, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर
the seminal vesicle and the ampulla of vas deferens. So and as well as prostate. So in male these are the structures which are related anterior to the rectum. ठीक है, base of the bladder हो गया, terminal part of ureter हो गया, seminal vesicle हो गया, फिर vas deferens हो जाएगा और prostate हो जाएगा. Whereas in female में क्या होगा आगे? Lower part of the vagina होगा. In female the only thing which is present anteriorly is the lower end of vagina. Vagina का lower end present होगा और इन दोनों के बीच में आपकी pouch होगी, rectovesical और rectouterine in either. ठीक है. Whereas posterior relationship both in male, बैठ जाओ वहीं पे आप भी. Whereas posterior relation both in male and female is similar. दोनों में same है. Midline structures, in the midline there is presence of middle sacral vessels, superior rectal artery, lower 3 piece of sacrum, ganglionic impulse. उस दिन पढ़ाया था मैंने आपको, है ना? Sympathetic chain आगे दोनों fuse करके in front of coccyx there form a ganglionic impulse. तो वो होगा coccyx होगा और anococcygeal raphe होगा, जो कि anus से लेकर के coccyx के बीच में एक thickened band होता है जिसको anococcygeal raphe कहते हैं. So these are the structures which is present in the midline. Whereas on each side there is presence of sympathetic chain. यही sympathetic chain use करके ganglionic impulse बना रहे हैं. Lateral sacral vessels, उसके बाद यहाँ की muscles, piriformis, coccygeal, anterior primary rami of SCH4, S5, pelvic splanchnic nerve, coccygeal nerve. ठीक है. So these are the structures which are present on either side, which is similar in both male and female. Now on either side क्या आएगा? क्योंकि rectum है, rectum के side में pouch बनेगा तो उसको क्या बोलोगे? Pararectal fossa. Para का मतलब होता है by the side. So by the side of rectum there is presence of fossa known as pararectal fossa. ठीक है. तो there is presence of pararectal fossa और lower part में pelvic rectal space और यहाँ पे muscle side भी लेकर आना. तो pelvic diaphragm आना. So these are the relations which is present on the lateral side. Now if we see the interior of rectum, within the interior of rectum there are presence of two types of mucosal fold. One is the temporary fold and one is the permanent fold. ठीक है. दो तरह के, जब इंटीरियर देखोगे रेक्टम, when we will visualize the interior of rectum, कट करके देखेंगे तो you will get two type of mucosal fold. One is called the temporary and the other one is permanent. जो टेम्पोररी फोल्ड होते हैं वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड हैं. और जो परमानेंट फोल्ड है वो कैसे होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली. ठीक है. परमानेंट फोल्ड कैसे है? ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है. और जो टेम्पोररी फोल्ड है दैट आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनली एंड दीज टेम्पोररी फोल्ड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द लोअर पार्ट. ठीक है. और जैसे रेक्टम डिस्टेंट होगा, ठीक है, जब रेक्टम डिस्टेंट कब होगा? व्हेन अ पर्सन हैज अ डिजायर टू डेफिकेट, तो उस टाइम क्या होते हैं? ये टेम्परेरी फोल्ड डिसअपियर कर जाते हैं. ठीक है. टेम्परेरी नाम ही इसलिए है क्योंकि when the rectum descend at the time of desire of defecation, these temporary folds which is present only in the lower part and these are longitudinally running folds that get disappeared. ठीक है. Now the permanent folds. परमानेंट फोल्ड्स मैंने क्या बताया आपको? ये क्या है? ट्रांसवर्सली रनिंग फोल्ड्स है. और इनके शेप्स क्या होते हैं? दीज आर क्रेसेंट्रिक शेप. सबको सेमी ल्यूनर शेप है. क्या शेप है इसका? सेमी ल्यूनर और क्रेसेंट्रिक. और ये कहाँ प्रेजेंट है आपका? ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है. दीज आर, ठीक है, ट्रांसवर्सली और हॉरिजॉन्टली है, सेमी ल्यूनर और क्रेसेंट्रिक इन शेप है. और जो आपको अभी लेटरल कर्वेचर्स मैंने पढ़ाया था ना, उसी के अलॉन्ग ज्यादातर है. ठीक है. तो और ये किस वजह से होते हैं? दीज परमानेंट म्यूकोसल फोल्ड. अच्छा, इन परमानेंट म्यूकोसल फोल्ड को हॉस्टन्स वॉल्व कहते हैं. क्या हो गया? These permanent mucosal folds are known as Houston walls and these are formed. ये किसकी वजह से होता है? These are due to the यहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनके रीडिप्लिकेशन होते हैं, एज वेल एज जो यहाँ रेक्टम की जो वॉल में सर्कुलर मसल है उनकी थिकनिंग की वजह से होते हैं. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दीज परमानेंट फोल्ड्स present in the interior of rectum? It is due to the reduplications of the mucous membrane
as well as due to thickening of the circular muscle present in the muscular coat of rectum. उनकी वजह से ये फोल्ड होते हैं और ये फोल्ड these folds are present transversely along the curvature. lateral curvature 3 बताया था ना, ज्यादातर उनके ही पोजीशन पे है. तो there are 4 permanent folds, 1 2 3 4 नंबरिंग किया गया है ऊपर से नीचे. So there are 4 in which the third one is the most important and most constant. हाँ डियर, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, तुमसे राइट जो बैठी उसको बोल रही हूँ. शिफ्ट होके बैठो उधर. कंटिन्यूस बातें कर रही हो. अब अगर मैंने तुम्हें बातें करते देखा ना, आई थ्रो यू आउट. बाहर बैठ के बातें करो. तो दीज परमानेंट म्यूकोसल फोल्ड, जिसको हम हॉस्टन्स वॉल्स भी कहते हैं, दीज आर 4 इन नंबर, 1 2 3 4 ऊपर से नीचे. जो मैंने क्या बताया कि थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कांस्टेंट, ठीक है ना, इन पोजीशन. ठीक है. तो दीज आर द 4 फोल्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. और ये क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है तो दीज ऐसे देखा. इसका ये फोल्ड का काम क्या है? इट विल होल्ड द पीसेस. क्या करता है? क्या हुआ? सिट प्रॉपर्ली. ये क्या करते हैं? ये होल्ड करके रखते हैं पीसेस को. द फर्स्ट वन वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन. रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? थर्ड के S3 के लेवल पे शुरू हुआ था, तो वहां पे स्टार्ट होगा. और ये जो रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन पे फर्स्ट वाला वॉल्व है, ये दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकता है, राइट वॉल से भी और लेफ्ट वॉल से भी. ठीक है. इट मे प्रोड्यूस ईदर फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट वॉल. तो दिस वाज द फर्स्ट वन. देन द थर्ड वन, जिसको मैंने आपको कहा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कांस्टेंट. सेकंड और फोर्थ बाद में देखेंगे, बिकॉज इसके जो पोजीशन होते हैं दैट इज इन रिलेशन विद द थर्ड वॉल. खड़े हो जाओ. हाँ हाँ. कितने टेम्परेरी फोल्ड्स होते हैं? क्या होता है टेम्परेरी फोल्ड्स विद इन द, और क्यों बनते हैं ये फोल्ड? हाँ क्या टेम्परेरी फोल्ड का तो कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि 2 ही होंगे कि 4 होंगे. बस लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है फोल्ड. बातें करा लो तुम्हें बस. रीजन बताओ परमानेंट फोल्ड क्यों बनते हैं? ये जो प्रिसेंट्रिक फोल्ड्स हैं वो बनते क्यों हैं? तुम बताओ. तो काम है उसका, बना कैसे? हाँ नेक्स्ट. खड़े जाओ. यहाँ से खड़े जाओ, मैं खड़े होकर क्लास अटेंड करो. जाओ. और नहीं तो बाहर गेट खुलाए जा सकते हो. इतना यहाँ पे डिस्टर्बेंस है. गो एंड स्टैंड देयर. हाँ तुम बताओ. हाउ दीज फोल्ड्स आर फॉर्म्ड. कैसे बना ये फोल्ड? हाँ नेक्स्ट. आप बताएं. बस मुझे खड़े होना है, क्लास में आकर के बैठ जाना है, बातें करना है, वही बताएं मुझे. अब तो सीरियस हो जाओ, तुम्हारा सेशन एंड हो गया है. तो 2 महीने में यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है. उन सीनियर से पूछते नहीं हो जो जिनको सप्ली आती है और वो दोबारा आते हैं? द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट. और ये जो पहला वाला था वो या तो राइट वॉल से प्रोड्यूस कर सकता है या लेफ्ट वॉल से. जो थर्ड वाला होता है वो एंटीरियर या राइट वॉल से प्रोड्यूस करता है. और ये जो नीचे वाले तीनों है ना, वो आपको मैंने 3 लेटरल कर्वेचर्स बताए थे ना,
सेकेंड वाला राइट में 2 था, तो सेकेंड वाला जो है राइट के अपर वाले के पोजीशन पे है, जो नीचे वाला है वो राइट लोअर वाले के पोजीशन में है, और लेफ्ट साइड जो मिडल वाला था वहाँ उसके पोजीशन पे कौन सा है आपका थर्ड वाला। अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि थर्ड के 2.5 सेंटीमीटर अबव सेकेंड वाला प्रेजेंट है और थर्ड के 2.5 सेंटीमीटर बिलो फोर्थ वाला प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सारे काम वही है कि होल्ड करते हैं फीसेस को, ठीक है। ये जो थर्ड वाला प्रेजेंट है उसको हम एक जंक्शन मानते हैं, उसके ऊपर वाला चैम्बर अपर चैम्बर ऑफ रेक्टम और लोअर चैम्बर ऑफ रेक्टम। तो अपर वाला, ये ऊपर में तो डेवलपमेंटली लिखा है, वो हाइंडगट से डेवलप करता है और नीचे वाला क्लोएका से डेवलप करता है, वो आप डेवलपमेंट में पढ़ोगे। ऊपर वाला क्या करता है, ये फीसेस को होल्ड करके रखता है विदाउट रिफ्लेक्स एक्ट ऑफ डेफिकेशन। जब तक वहां पे है फीसेस, एक पर्सन को डिजायर नहीं होता है कि उसको डेफिकेट करना है। जैसे ही लोअर चैम्बर में आता है, अ पर्सन हैज अ डिजायर नाउ ही और शी हैज टू डेफिकेट, ठीक है। तो अपर चैम्बर में वहां पे वो है बस, बट द पर्सन डजंट हैव अ डिजायर टू फॉर डेफिकेशन, वेयर जैसे ही वो लोअर चैम्बर में आता है द पर्सन हैज अ डिजायर टू डेफिकेट, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। नाउ द थर्ड वाला क्या मैंने बताया कि सेकेंड वाला थर्ड के 2.5 सेंटीमीटर अबव है और लेफ्ट वाला जो अपर लेफ्ट है उसके रिलेशन में है, सॉरी अपर राइट के रिलेशन में है। राइट में 2 था ना, तो अपर राइट के रिलेशन में, वेयर फोर्थ वाला थर्ड के 2.5 सेंटीमीटर बिलो है एंड लोअर राइट के रिलेशन में। These are the importance of walls. सब तुम उठ जाओ और बाहर जाओ, बोला ना बाहर जाओ। नहीं पता है, ये तुम लोग ना जानबूझ के करते हो, दैट इज, मैंने बोला ना बाहर जाओ। तो अटेंडेंस कम है तो मैनर्ड में भी रहना चाहिए। चलो गो आउटसाइड। प्रॉक्सी नहीं लगेगी, मैं तुम्हारी स्पेशली एब्सेंट लगाऊंगी, है ना, इसलिए प्रॉक्सी नहीं लगेगी। गेट बंद कर करके जाओ। प्रॉक्सी लगा देना, ठीक है। तो इट विल सपोर्ट द वेट ऑफ द फीचर्स, ठीक है। अच्छा, जब ये जो थर्ड वाला है बहुत इनकॉन्स्टेंट है, तो क्या करता है कि अगर सिग्मोइडोस्कोपी करना है, किसी को सिग्मोइड देना है या रेक्टल वॉश करना है ना, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में कभी कभी रेक्टल वॉश भी करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं पेशेंट, क्योंकि ये चांस होता है कि थर्ड वाला वॉल की इंजरी का चांसेस होता है, तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में प्रोट्रूड कर रहा है, तो इसीलिए पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रख करके ही रेक्टल वॉश या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थर्ड वॉल, ठीक है। अदरवाइज द पेशेंट फील अ लॉट ऑफ पेन और इंजरी भी हो सकती है थर्ड वॉल को। तो पेशेंट को किस पोजीशन में रखते हैं, पेशेंट विल बी इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, and this will be done to avoid the injury to the wall, इंजरी वॉल पे इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। and now the arterial supply, ठीक है। तो this is supplied by 1 superior rectal artery, 2 middle rectal artery and 2 inferior rectal artery. Superior rectal artery is a continuation of नहीं पता। Superior rectal artery, it is a continuation of inferior mesenteric artery, ठीक है। And there is 2 middle rectal artery. Middle rectal artery is the anterior, it is a branch of anterior division of internal iliac artery, whereas there are 2 inferior rectal artery and these are the branches of internal pudendal artery. Apart from it, it is also supplied by middle sacral artery, which is a direct branch of abdominal aorta from its posterior aspect. So these are the 6 arteries which are supplying the rectum, ठीक है। सुपीरियर का एक ही है, मिडिल के 2 है ब्रांच, इंफीरियर के 2 और 1 मिडिल सैक्रल आर्टरी। तो ऑल दीज आर्टरीज सप्लाइज दी रेक्टम। इतना डिटेल में तुम्हें बताना, तो डिटेल में कुछ भी बताने का तभी मन करता है कि जब स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब ना, हाँ यस मैम, आता तो कुछ है नहीं। कीप योर माउथ शट, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ। नाउ द वीनस ड्रेनेज, जितनी भी ब्लड ड्रेन होती है रेक्टम से, these vessels
forms venous plexuses. So these venous plexuses, there are two type of venous plexuses present around the rectum. One is known as internal rectal venous plexus and one is known as external venous plexus. ठीक है, which are present around the rectum and anal canal. And from here the बाहर जाना है तुम्हें, बातें क्यों कर रहे हो तुम? So these rectal venous plexus, these join, उठ जाओ, खड़े जाओ, बाहर जाओ, उठो, तुम भी उठो, बाहर जाओ. ठीक है, तो these rectal venous plexus फाइनली क्या होता है कि ये जाकर के मेन वेन्स में जाते हैं. तो कौन कौन सी वेन होगी? सिमिलर टू द आर्टरी, दैट इज सुपीरियर रेक्टल वेन, टू मिडल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन. ठीक है, एंड एज दीज वेनस साइनसेस एंड वेन्स आर प्रेजेंट अराउंड द रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो दिस फॉर्म्स अ प्लेक्सस ऑफ वेन अराउंड द रेक्टम. क्या हुआ? तुम अपनी मर्जी से कहते. So these veins form so these veins which form a plexus, तो इसको क्या कहते हैं? Annulus hemorrhoidus. ये ना known as annulus hemorrhoidus, और ये फाइनली superior rectal, middle rectal और inferior rectal वेन में जाके ड्रेन हो जाते हैं. सुपीरियर रेक्टल कहाँ जाते हैं? पोर्टल सिस्टम. और जो बाकी नीचे वाले हैं वो कहाँ ड्रेन होगा? केवल सिस्टम, है ना. Now the lymphatics from the upper part of that, the lymphatics from the upper half of the rectum drain into the superior mesenteric group of lymph node, और कुछ जो होते हैं ना वो pararectal lymph nodes में भी जाते हैं. There is that from the lower part of the rectum, the lymph node get drained into the internal iliac group of lymph. ऊपर वाले से superior mesenteric में और pararectal में, और नीचे वाले half of rectum से lymph node जाकर के drain होते हैं internal iliac में. अच्छा, nerve supply is both from the sympathetic as well as parasympathetic. Sympathetic supply superior hypoglossal plexus से आती है और parasympathetic pelvic flank nerve से. ठीक है, this is vasomotor, this is secretive. Now how, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेक्टम अपनी पोजीशन पे कैसे मेंटेन है. सपोर्ट जिस ऑर्गन का आपको पढ़ाया जाए, चाहे लिवर हो, यूट्रस हो, रेक्टम हो, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है कि आपको सबके ऑर्गन से सपोर्ट पता होना चाहिए. तो दिस सपोर्ट ऑफ रेक्टम, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि एक जो एंटीरियर कर्वेचर, पेरिनियल कर्वेचर बनाता है बाय द स्लिंग ऑफ लेवेटर एनाई, है ना, मसल. तो एक तो वो स्लिंग होल्ड करके रखता है रेक्टम को अपनी पोजीशन में. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय हाउ टू होल्ड द रेक्टम इन पोजीशन. व्हाट इज द सपोर्ट? तो pelvic floor और द स्लिंग फॉर्म बाय द लेवेटर एनाई मसल. दूसरा फेशिया ऑफ वैल्डर. फेशिया ऑफ वैल्डर क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि कनेक्ट करती है रेक्टम और एनस के पोस्टीरियर पार्ट को टिप ऑफ कॉक्सिक्स से. एक तो ये हो गया pubic sling, or sorry, this is the fascia of Walder which will connect the posterior part of rectum. एक connective fascia है, connective tissue की लेयर है जो कि posterior part of rectum और anal canal को tip of coccyx से अटैच करके रखती है. तो दिस इज द सेकेंड रीजन कि उसको पोजीशन में होल्ड करके रखती है. द थर्ड वन इज द लेटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम. जो लेटरल वॉल ऑफ रेक्टम है वहां से एक फाइब्रस बैंड जाकर के लेसर पेल्विस के पोस्टेरो लेटरल पार्ट पे अटैच होती है. दिस इज कॉल्ड द लेटरल लिगामेंट ऑफ रेक्टम. इट विल ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग द रेक्टम इन पोजीशन. कहाँ है? रेक्टम की लेटरल वॉल से, पेल्विस है, पेल्विस के पोस्टेरो लेटरल पार्ट पे जाकर के अटैच हो जाती है. तो दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट फॉर द रेक्टम. उसके अलावा आपको जो आगे में पाउच मिल रहा था, रेक्टोवेजाइकल पाउच, ठीक है, और इन फीमेल रेक्टो यूट्राइन पाउच.
दिस विल ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग, क्योंकि एक को दूसरे से कनेक्ट करेंगे. देन द पेल्विक पेरिटोनियम, द पेरिनियल बॉडी विच इज प्रेजेंट इंटीरियरली, वो भी हेल्प करेगा. और ईदर साइड में क्या होता है, अभी आपको पढ़ाई नहीं होगा, कल के लेक्चर में पढ़ाएगा हिस्टोरेक्टल फोसा, जो कि रेक्टम और एनल कैनाल के साइड में प्रेजेंट है. और ये फैट फिल्ड फोसा होता है. तो ये जो फैट होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कुशनिंग इफेक्ट देते हैं और होल्ड करके रखते हैं रेक्टम को. तो दीज आर ऑल द सपोर्ट्स ऑफ रेक्टम. नाउ डायरेक्ट पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, इन विच यू कैन इंसर्ट योर फिंगर एंड आप इसके वॉल्स को फील कर सकते हैं. नाउ देयर इज अ कंडीशन नोन एज प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, व्हेन द रेक्टम विल कम आउट थ्रू द एनस. प्रोलैप्स का सबको मतलब पता है, ठीक है. रेक्टम अगर एनल कैनाल से बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम. दिस प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इट इज ऑफ टू टाइप. एक होता है आपका इनकम्प्लीट प्रोलैप्स जिसको म्यूकस प्रोलैप्स कहते हैं, और दूसरा कंप्लीट प्रोलैप्स होता है जिसको प्रोसीडेंशिया कहते हैं, ठीक है. तो दो टाइप्स का प्रोलैप्स हो गया. इनकम्प्लीट प्रोलैप्स में नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस प्रोलैप्स. इसमें क्या होता है कि ओनली द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो लेयर है वो बाहर आती है, ठीक है. तो उसको हम इनकम्प्लीट प्रोलैप्स और द म्यूकस प्रोलैप्स कहते हैं. जो दूसरा वाली है दैट इज द कंप्लीट प्रोलैप्स और द प्रोडेंशिया. उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा रेक्टल वॉल एनल कैनाल के बाहर आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट प्रोलैप्स और द प्रोसीडेंशिया. तो दीज आर द टू इमेज. ये म्यूकोसल प्रोलैप्स का है इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट. इसमें क्या हुआ, सिर्फ म्यूकोसा जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसका ही प्रोट्रूजन हुआ, एनल कैनाल के बाहर आ गई. और इसमें क्या है, पूरी जो वॉल की थिकनिंग है पूरी की पूरी रेक्टम बाहर आ गई है. तो दैट इज कॉल्ड द फुल थिकनेस प्रोलैप्स और द प्रोसीडेंशिया, ठीक है. अच्छा, इनकम्प्लीट प्रोलैप्स का कॉज क्या है, किसी को एक्सेसिव वो रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो डेफिकेशन के टाइम वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, स्ट्रेनिंग एफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोट्रूड होकर के बाहर आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसल प्रोलैप्स और द इनकम्प्लीट प्रोलैप्स. और ये होता क्यों है कि जो सब म्यूकोसा है, ड्यू टू इम्परफेक्ट ऑफ रेक्टल म्यूकोसा बाय सब म्यूकोसा, ठीक है. रेक्टल म्यूकोसा को सब म्यूकोसा होल्ड करके रख नहीं रहा है. तो जब काफी स्ट्रेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट, काफी स्ट्रेन ले रहा है, तो म्यूकोसा बाहर आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द रेक्टल प्रोलैप्स. नाउ द कंप्लीट प्रोलैप्स. कंप्लीट प्रोलैप्स के कॉजेज क्या है, पेल्विक डायफ्राम, मैंने बताया ना कि पेरिनियम के आउट कॉज है. तो अगर पेल्विक डायफ्राम लैप्स हो जाए, है ना, मेंटेन नहीं रहे उसकी, तो उसकी वजह से कंप्लीट प्रोलैप्स, पूरा रेक्टम बाहर आ सकता है. दूसरा, जो सपोर्ट्स थे ना मेन वो उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो इट विल लीड टू द कंप्लीट प्रोलैप्स. तो जो रेक्टोवेसाइकल और रेक्टो यूट्राइन पाउच है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाए तो वो होल्ड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी बाहर आ सकता है, ठीक है. और जो उसका पीछे का बेड था जिसपे सैक्रम और कॉकिस पे रख रहा था, तो वहां पे क्या था, फेशिया ऑफ वेल्डियर. तो अगर उसमें वीक हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसको होल्ड करके नहीं रखेगा, पीछे से पकड़ के नहीं रखेगा. तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज वेयर द रेक्टम कैन कम आउट थ्रू द एनल कैनाल, ठीक है. और फीचर क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, ये बॉबल्स क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे एनस से, ठीक है. म्यूकोसल डिस्चार्ज होगा, और ठीक है. तो दीज, और क्या होगा, एनल इनकंटिनेंस भी होगी, ठीक है. तो दीज आर द फ्यू फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम. नाउ द एनल कैनाल इज द टर्मिनल लास्ट पार्ट है, ठीक है. और ये कहाँ स्टार्ट होगा, एनोरेक्टल जंक्शन. एनोरेक्टल जंक्शन कहाँ था, 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ टिप ऑफ कॉकिस, वहां से लेकर के एनल ऑरिफिस तक आएगा. अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, अच्छा, रेक्टम का जो डायरेक्शन था अपर, मिडल और लोअर थर्ड में डिफरेंट है. सबसे अपर वाले पार्ट में इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, देन स्ट्रेट डाउनवर्ड एंड देन अगेन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है. अपर, मिडल एंड लोअर थर्ड में वो रह गया था, उससे मैंने नहीं बताई थी. क्या हुआ, डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है. अब अगेन जब जैसे ही एनोरेक्टल जंक्शन पे आएगा, इट विल अगेन टर्न डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है. और एंड कहाँ होगा, एनल ऑरिफिस पे होगा. तो इट इज डायरेक्टेड, तो एनस का डायरेक्शन क्या होगा, एनल कैनाल का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टिल द एनल ऑरिफिस, ठीक है. और एनल ऑरिफिस कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू बटक, जो नेटल क्लेफ्ट है, सबको पता है ना व्हाट इज नेटल क्लेफ्ट, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बटक, वहां पे एनल ऑरिफिस इज प्रेजेंट. जो एनस का एंटीरियर वॉल होता है वो शॉर्टर होता है, और चारों तरफ क्या होता है, इट इज सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर एंड आई मसल,
ठीक है। और टोन ऑफ द, और ये क्या होता है, एनस की ओपनिंग क्या होती है, थोड़ी सी, एक तो पिगमेंटेड होगी, ठीक है, कोर्स हेयर्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पिगमेंटेड होगी, और क्या होगा, थोड़ी सी पंक्चिंग होती है ना, और दिस इज ड्यू टू द अंडरलाइंग क्यूटेनियस मसल दैट इज कोर्वेटर क्यूटिस एनाई मसल की वजह से क्या होती है, क्योंकि एनल ओरिफिस तो बंद रहता है ना एवरी टाइम, तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग मसल दैट इज कोर्वेटर एनाई मसल, ठीक है, क्यूटिस एनाई, क्यूटिस इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जस्ट स्किन के डीप में है, एंड इट, और वो स्फिंक्टर को क्लोज करके रखता है, क्योंकि एनस के अराउंड दो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो कि उसको हेल्प करते हैं क्लोज में रहने के लिए, और जब डेफिकेशन होता है देन ओनली इट विल ओपन। द लेंथ ऑफ एनल कैनाल इज 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेटरल वॉल अप्रोक्सीमेटर लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। दीज आर द रिलेशन, आगे में क्या होगा, मेल में एक तो पेरिनियल बॉडी दोनों में होगा, मेल में आगे में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होगा, बल्ब ऑफ पेनिस, और फीमेल में क्या होगा, वेजाइना होगा, पीछे में एनोकॉक्सियल रैक और टिप ऑफ कॉक्सिस, लेटरली अभी मैंने बताया था इस्टियोरेक्टल फोसा है विच इज फिल्ड विद फैट, ठीक है, और ऑल राउंड जो स्फिंक्ट्रिक मसल्स होगी वो पूरे चारों तरफ रहेगी, और इट विल हेल्प इन क्लोजिंग द एनल ओरिफिस। खड़ी हो जाओ तुम, हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। So this anal canal, it is divided in two part by a line known as pectinate line, ठीक है, दो पार्ट में एनल कैनाल डिवाइडेड है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और दीज टू पार्ट ऑफ एनल कैनाल इज बाउंडेड बाय अ लाइन नोन एज पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन अभी बताऊंगी क्या होता है। द अपर एंड द लोअर हाफ डेवलपमेंटली अलग है, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, सब कुछ दोनों में अलग होता है। तो अपर हाफ इट इज फॉर्म बाय एंडोडर्म, लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल इट इज फॉर्म बाय द एक्टोडर्म। अपर वाली की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से होती है, जो लोअर वाली की इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से। अपर वाली के वेनस ड्रेनेज कहाँ जाएगा, सुपीरियर रेक्टल वेन में, जहां से वो पोर्टल में जाएगा, पोर्टल सिस्टम में। लोअर वाला इंफीरियर रेक्टल वेन में जाएगा, जिससे वो केवल सिस्टम में जाएगा, ठीक है। लिम्फेटिक अपर वाला इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में जाता है, लोअर वाला सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। नर्व सप्लाई ऊपर वाली आपकी जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से है, और नीचे वाली सोमैटिक से है, ठीक है ना, इसीलिए ऊपर वाले में पेन नहीं होगा, नीचे वाले है ना। और लास्ट, ठीक है, ऊपर वाले में इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं और नीचे में एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, एंड दीज टू पार्ट आर डिवाइडेड बाय अ पेक्टिनेट लाइन। So this is the pectinate line. This is the upper half which is 15 mm, and this lower half it is longer. It is about 23 mm long. This upper half is presence of these columns. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, these anal columns होते हैं, और इन columns में ही जो vessels हैं वो लॉन्च करते हैं। और anal columns का जो lower end होता है, these are joined by the anal walls, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वॉल्स नोन एज एनल वॉल्स, ये इनको ज्वाइन करती है, और यही एनल वॉल का जो डिमार्केशन है ना, इसी को हम पेक्टिनेट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो दिस पेक्टिनेट लाइन डिवाइड्स इट इनटू अपर हाफ एंड अ लोअर हाफ, ठीक है। Then there is another line known as white line of Hilton. This is the white line of Hilton which divides the lower half again into two parts. This part is known as spectrum and this is known as anal verge. This is approx about 15 mm long, और ये जो लास्ट वाला बच गया है that is बैठ जाओ 8 mm long. तो ऑल टुगेदर आप जनरल भी कह सकते हो, किसी बुक में डायरेक्टली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, किसी बुक में ये क्या किया है, जो आपका पेक्टिनेट लाइन है उससे ऊपर एक हाफ और लोअर हाफ, और जो लोअर हाफ है इट विल अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो 3 पार्ट हो गया, अपर इंटरमीडिएट, चाहे वो कैसे भी डिवाइड करो, अपर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड लोअर पार्ट बाय द 2 लाइन, वन इज नोन एज पेक्टिनल लाइन एंड दूसरा नीचे वाला है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन।
जो अपर वाला मस्कुलर पार्ट है दैट इज, अच्छा दोनों की एपिथेलियल लाइनिंग भी अपर हाफ और लोअर हाफ आपकी अलग है। ऊपर वाले की जो लाइनिंग है वो सिंपल कॉलमनर होती है और जो नीचे वाले की है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। So the lower half of the anal canal, it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium, whereas the upper half of the anal canal, it is lined by mostly by the simple columnar epithelium. In the upper half, there are presence of these longitudinal running mucosal folds, and these folds are known as anal columns or column of Morgagni. ठीक है, और ये क्यों होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन की वजह से these anal columns are formed, and मैंने अभी आपको बताया था कि इन कॉलम्स में क्या रहता है, वेसल्स रहते हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन्स में भी रहता है। लोअर जो कॉलम्स के लोअर पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एंड दैट फ्यूजन इज नोन एज एनल वॉल, जहाँ पे आपको पेक्टिनेट लाइन मिली थी। तो दीज आर द ट्रिसेंट्रिक म्यूकोसल फोल्ड विच विल कनेक्ट द लोअर एंड ऑफ एनल कॉलम। ठीक है, तो ये एनल कॉलम्स हो गए और ये नीचे में इसके एनल वॉल्स हो गए। ठीक है, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल रनिंग फोल्ड्स है ना, इसको एनल साइनसेस कहते हैं। और इन एनल साइनसेस में क्या होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं व्हिच ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ एनल वॉल। अच्छा, ये एक चीज पूछा जाता है कि मैंने ये बताया ना कि इसको व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्यों कहते हैं। व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन इसलिए कहते हैं कि जो मिडल वाला पार्ट है वो ब्लूइश पिंक कलर का होता है, और लोअर वाला क्योंकि वो स्किन के कांटेक्ट में वो क्या है, ऊपर वाला म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या दिखाता है, और नीचे अंडरलाइन वेसल्स होते हैं, वेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लूइश टिंट आता है, और नीचे वो डायरेक्टली पेरिएनल का स्किन है तो वो ब्लैकिश दिखता है। तो वो ऊपर में पिंकिश ब्लू एरिया और नीचे में ब्लैकिश एरिया, तो उन दोनों के बीच में एक व्हाइट लाइन डिमार्केट होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। समझ में आ गया ना? दैट इज अ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। ऊपर वाला म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड है और नीचे वाला स्किन से लाइंड है, तो दैट इज द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो कि डिमार्केट करता है ऊपर ब्लूइश पिंक एरिया और नीचे में ब्लैकिश एरिया। ठीक है, तो दैट्स वाई इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो एरिया है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो दैट इज किस चीज से लाइंड होगा, अभी मैंने आपको बताया था, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और नीचे क्या है, स्किन है, पेरिएनल स्किन है। तो नीचे वाले हाफ में आपको स्वेट सेबेशियस ग्लैंड मिलेगा, इंटरमीडिएट हाफ में कोई स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड आपको नहीं मिलेगा। नीचे में और क्या मिलेगा, हेयर फॉलिकल्स हो सकता है एनल ओरिफिस के आसपास में। तो दीज आर द फीचर्स प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट एंड लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। और ये अभी आपको मैंने बताया था कि मसल की वजह से कॉर्रुगेशन प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू कॉर्रुगेटेड एनाई मसल्स। ठीक है, क्यूटिस एनाई मसल। और ये अभी मैंने आपको बताया कि व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन क्यों कहते हैं। अब नाउ आसपास एनल कैनाल के अराउंड में दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, वन इज नोन एज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड वन इज नोन एज इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल सबको पता है अंदर की तरफ है, इंटरनल ये वाले डायग्राम में देखो, मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ आपको। देयर आर टू टाइप ऑफ एनल स्फिंक्टर, और यही एनल स्फिंक्टर क्या करते हैं, एनल ओरिफिस को क्लोज करके रखने में हेल्प करते हैं। तो रेक्टम के आसपास दो तरह की मस्कुलर वॉल्व होती है, इनर जो है वो सर्कुलर कोट होती है और आउटर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल कोट होती है। जो ये सर्कुलर कोट है रेक्टल का, वही नीचे जाके के कंटिन्यू हो जाता है एज ए इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, दिख रहा है सबको ये दिस इज द इंटरनल एनल स्फिंक्टर विच इज फॉर्म बाय विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर मसल कोट ऑफ रेक्टल वॉल। वेयर एज उसके बाहर आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड दिखेगा, दैट इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ऊपर से नीचे सबसे ऊपर डीप पार्ट विच विल सराउंड द अपर पार्ट ऑफ दिस इंटरनल स्फिंक्टर, देन द सुपरफिशियल पार्ट, और जो स्किन के रिलेशन में होगा उसको क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस। जो सबक्यूटेनियस पार्ट है उसके ऊपर ही आपका ये दिस इज द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, जहां पे इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड कर जाता है। तो दिस इज द इंटरनल एनल स्फिंक्टर व्हिच एंड एट द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो उसके नीचे जो ये पार्ट होगा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, दैट इज नोन एज सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। Here the internal anal sphincter divided into various fibroelastic septa, and these septa get attached over the perineal skin. ठीक है, ये फाइब्रस सेप्टा में डिवाइड होकर के जाके पेरिनियल स्किन पे जाकर के अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड देयर इज अ सिंगल इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और सबका काम यह है कि इसको होल्ड करके रखें।
क्या टाइम हो रहा है बेटा? 5 मिनट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट इसकी अप्लाइड बता देती हूँ। हेमरॉइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब तो मैंने अभी जो बताया आपको। हेमरॉइड्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड है, आपको पता होना चाहिए। हेमरॉइड्स इज नोन एज, अभी आपको मैंने बताया था ना, एनल कॉलम्स में क्या रहते हैं? वेन्स, देयर इज प्रेजेंट ऑफ वेन्स। तो अगर वेरिसियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिसियल डायलेटेशन? वेन्स का एबनॉर्मल डायलेटेशन को वेरिसियल मीन्स एबनॉर्मल, ठीक है। तो इफ इट इज एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ दीज सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल वेन, देन इट इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? पाइल्स और हेमरॉइड, ठीक है। तो एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द सब म्यूकोसा में जो प्रेजेंट है वेनस प्लेक्सस, या जो पेरी एनल एनस के आसपास जो वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट है, उन वीनस प्लेक्सस का अगर एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाएगा, देन इट विल लीड टू एन क्लिनिकल कंडीशन नोन एज हेमरॉइड और द पाइल्स। समझ में आ गया? क्योंकि इन कॉलम्स में क्या प्रेजेंट थे? वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट थे, जो वहां पे हमने पढ़ा था एनुलर हेमरॉइडिस कहते हैं उसको, तो वो वहीं से नाम आया है, ठीक है। इसी की वजह से उसका नाम क्या दिया गया है? क्योंकि चारों तरफ सर्कुलरली प्रेजेंट है और इसीलिए नाम दिया गया है एनुलर हेमरॉइडस, क्योंकि वही सारे वेन्स कंटिन्यूड है और चारों तरफ एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ दीज वेन्स, इट विल लीड टू हेमरॉइड्स और दी पाइल्स, एंड दीज वेन इज प्रेजेंट ईदर इन द सबम्यूकोसा और अराउंड द पेरियानल। बेसिकली हेमरॉइड्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल हेमरॉइड, अभी भी आपको मैंने बताया था कि अपर पार्ट में जो हेमरॉइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल हेमरॉइड, और जो लोअर पार्ट में हेमरॉइड्स होगा उसको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल हेमरॉइड, ठीक है। तो इंटरनल हेमरॉइड किसकी वजह से होगा? किसके? डायलेटेशन की वजह से। वहां पे कौन सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर रेक्टल वेन सप्लाई कर रहा है, ड्रेन ले रहा है। तो सुपीरियर रेक्टल का अगर एबनॉर्मल डायलेटेशन होगा, इट विल लीड टू इंटरनल हेमरॉइड। और अगर आपके इंफीरियर, क्या बातें कर रही हो? अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी तो पता तो नहीं होगा, इवन जो पढ़ा रही हूँ वो भी नहीं पता है तुम्हें, बस बातें कर लो। और जो इंफीरियर रेक्टल वेन के अगर डायलेटेशन होंगे तो इट विल लीड टू एक्सटर्नल हेमरॉइड। वो व्हाइट लाइन के ऊपर होगा, ये व्हाइट लाइन का के नीचे होगा। ऊपर वाले जो थे मैंने क्या बताया था? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाइड है। नीचे वाला सोमैटिक से, तो नीचे वाला पेनफुल है, ऊपर वाला पेनलेस है, ठीक है। वो तो जनरल आपको पता ही है कि ऊपर वाला पेनफुल होगा, पेनलेस होगा, ठीक है। अब ये, so this is the internal hemorrhoid which is present around the anal column and this is the external hemorrhoid. अच्छा, इंटरनल हेमरॉइड जो होती है ना, वो बेसिकली 3 पोजीशन पे होती है, 3rd, 7th एंड 11th डिग्री, ठीक है। अगर क्लॉक मानते हैं तो 3 डिग्री, 7 o'clock और 11 o'clock। उसके अलावा और किसी इस पे होगा तो उसको एक्सटर्नल हेमरॉइड। मतलब इंटरनल हेमरॉइड का मोस्टली प्रेफर्ड साइड यही 3 है, 3 डिग्री, 7 डिग्री एंड 11 डिग्री। रेस्ट अदर आर मोर प्रोन फॉर एक्सटर्नल हेमरॉइड। और ये जो हेमरॉइड्स होते हैं ये 3 स्टेजेस में होते हैं, 1st, 2nd एंड 3rd डिग्री। 1st डिग्री में क्या होगा कि रप्चर होगा वेन का, थोड़ा ब्लीडिंग होगा। 2nd में बाहर ही आ जाता है अलॉन्ग विथ उसके साथ रेक्टम भी, और 3rd डिग्री में कंप्लीटली बाहर आ जाएगा तो उसको 3rd डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये these are the 3 degree, this is the 3rd degree which is present in left lateral position, this is the 11 degree which is present in right anterior position and this is the 7 degree which is present in right posterior। तो ये 3 ही पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनल हेमरॉइड यही 3 होता है। एक तो आपका लेफ्ट लेटरल पोजीशन में राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर। राइट एंटीरियर ऊपर होगा 11, राइट पोस्टीरियर 7, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपका 3 o'clock होगा। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ इंटरनल हेमरॉइड। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इंटरनल हेमरॉइड का? वेन के जो वॉल है वो वीक हो जाएंगे तो एब्नॉर्मल डायलेटेशन हो जाएगा। सुपीरियर रेक्टल वेन क्योंकि वॉल्वलेस होता है तो इसीलिए वहां पे भी चांसेस होती है। वेन्स आर लेस सपोर्टेड इन द एनल कॉलम्स में तो प्रेजेंट है तो वहां पे लेस सपोर्ट है, इसलिए और क्या होता है, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, पोर्टल हाइपोटेंशन के भी केसेस में देखने मिलता है। और क्योंकि डेफिकेशन के टाइम में वेनस रिटर्न हैम्पर्ड होता है तो उस केस की वजह से भी इंटरनल हेमरॉइड्स आर मोर कॉमन। नाउ देयर इज अनदर, दो इसके अलावा और अप्लाइड है, वन इज नोन एज एनल फिशर एंड वन इज नोन एज एनल फिशुला, ठीक है। एनल फिशर एंड देखो जो आपको एनल वॉल्स बताया था ना, व्हाट इज एनल वॉल?
जो एनल कॉलम्स थे उसके लोअर मार्जिन को जब ज्वाइन कर रहे थे, जहां पे पेक्टिनेट लाइन बन रही थी, दैट इज नोन एज एनल वॉल। तो अगर उन एनल वॉल्स का रप्चर होगा तो दैट विल लीड टू द एनल फिशर। और क्योंकि ये अपर पार्ट में है तो इसीलिए क्या होगा, सॉरी ये थोड़ा लोअर पार्ट में होगा तो हाँ पेनफुल होगा। ठीक है, तो दिस इज द एनल फिशर कॉमनली ऑब्जर्व। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखने मिलता है जिसको कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो उनमें ज्यादातर वहां देखने के लिए मिलता है। तो और जो एनल वॉल है वो पूरा टियर होकर के नीचे एनल ओरिफिस तक आ जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर और ज्यादातर कहाँ होता है, पोस्टीरियर मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो दीज आर द कॉजेज। तो दिस इज द एनल फिशर का केस है ना, देख रहे हो। नाउ द लास्ट वन दैट इज द फिस्टुला इन एनो। तो फिस्टुला इन एनो क्या है कि अगर एनस के आसपास एब्सेस है और उस एब्सेस का रप्चर हो गया है तो इट विल लीड टू अ फिस्टुला। ठीक है, तो दैट इज कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ एब्सेस अराउंड द एनस। तो फिस्टुला जब बर्स्ट करेगा तो उसकी जो पूरी चैनल होगी वो एपिथेलाइज्ड हो जाएगी, और वो कहाँ खुलेगा, एक तो इंटीरियर ओपनिंग होगा एनस में और एक एक्सटीरियर ओपनिंग होगी दैट इज ऑन द स्किन। ठीक है, तो दिस इज द एब्सेस व्हिच गेट रप्चर्ड एंड गेट इंटरनली ओपनिंग इनटू द एनल कैनाल, और एक्सटर्नल स्किन के पास ओपनिंग होगी। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी ट्रैक्ट भी बनाते हैं और वो जाकर के मल्टीपल जगह पे भी जाकर के ट्रैक्ट जो होगा ओपन होगा। तो फिस्टुला का ये जो बस ये याद रखना है कि द होल ट्रैक्ट इज एपिथेलाइज्ड। थैंक यू।